کپتان سے غداری کیوں کی؟ پی ٹی آئی کے کارکن مشتعل ہو گئے۔ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ تحریک انصاف کے ٹائیگرز دروازے توڑ کر سندھ ہاؤس میں داخل ہو گئے اور باغی ممبران کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ کئی گھنٹوں تک سندھ ہاؤس میدان جنگ بنا رہا۔ سندھ پولیس حالات قابو کرنے میں ناکام رہی تو اسلام آباد کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی اسلام آباد پولیس سے بھی تلخ کلامی ہوئی۔ دوسری جانب وزیر داخلہ شیخ رشید نے واقعے کا نوٹس لے کر مظاہرین کی گرفتاری کا حکم دیا، جس پر 2 MNA سمیت کئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا اور سینئر رہنماؤں کی مداخلت کے بعد کارکنوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کا منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے سندھ ہاؤس پر دھاوا بول دیا۔ گیٹ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ سندھ ہاؤس کئی گھنٹوں تک میدان جنگ بنا رہا۔ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی عطا اللہ نیازی اور فہیم خان بھی کارکنان کے ساتھ موجود تھے۔ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو، استعفیٰ دو، الیکشن لڑو، عمران خان کے نام پہ MNA بنو، شرم آنی چاہیے۔ کارکنوں نے سندھ ہاؤس کے اندر شدید احتجاج اور نعرے بازی کی۔ سندھ پولیس مشتعل مظاہرین کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچی لیکن کارکنوں کو روکنے میں ناکام رہی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا فوری نوٹس، پولیس کو پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جس پر پولیس نے دونوں MNA سمیت کئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ تو افسوسناک واقعہ ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو پھر ملک میں اشتعال پھیل جائے گا اور ملک کسی اور طرف چل پڑے گا۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور میں نے IG کو فون پہ کہا کہ پھر فوراً لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس دوران پی ٹی آئی کارکنوں نے اسلام آباد پولیس کے SP سے تلخ کلامی کی اور سندھ ہاؤس کے باہر سے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ سینئر رہنماؤں کی مداخلت پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ ہاؤس پر حملے کو سندھ پر حملہ قرار دیا۔ شرجیل میمن نے ذمہ داری شیخ رشید پر ڈال دی، وزیر داخلہ پر کڑی تنقید کی۔ کہا شکست خوردہ عناصر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی نے غنڈہ گردی بند نہ کی تو جیالوں نے بھی بنی گالا کا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ ہمیں جوابی حملے کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ عمران خان کی بیساکھیاں ختم ہو چکی، یہ چاہتے ہیں ملک میں انارکی اور تصادم کی صورتحال ہو۔ قادر پٹیل نے بھی شیخ رشید کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ لوگ 4 گھنٹے سے یہاں موجود تھے۔ اسلام آباد پولیس کو پتا تھا، اگر ریڈ زون میں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ جتھا بردار لوگ، لاٹھیاں لے کر آئے ہوئے لوگ جو کہ گورنمنٹ کے ایک انسٹیٹیوٹ کا دروازہ توڑے اور دیواریں کود کے اندر آئے۔ شیخ رشید کے ایما پہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ وہ ٹریلر دکھانا ہمیں چاہ رہے ہیں، لیکن شیخ رشید کو امیڈیٹلی استعفیٰ دینا چاہیے اگر 1 ٹکے کی بھی کرپشن باقی ہے۔ ان کے پاس اس وقت ایک ہی علاج ہے کہ انارکی ہو، تشدد ہو، پارٹیاں روڈوں پہ ورکرز آپس میں لڑے۔ اپوزیشن نہیں چاہتی کہ تصادم ہو۔ ہمارا شروع پارلیمنٹ پہ ہے اور آخری بھی ہماری جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہم لڑیں گے۔ شیخ رشید کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم ڈر جائیں گے؟ ہم تیری طرح نواز کو چھوڑ کے مشرف کے پاس نہیں بھاگے اور مشرف سے ہم پی ٹی آئی کی طرف نہیں بھاگے۔ ہم پیپلز پارٹی کے ورکر ہیں، جہاں تھے وہاں کھڑے ہیں۔ تیرے دن ہیں 3، تمہاری سیاسی کیریئر کیا سیاسی اننگ ساری زندگی کی ختم ہونے والی ہے۔ تیرا کیا ہوگا شیدہ ٹلیا؟ اسلام آباد میں سندھ ہاؤس کے باہر احتجاج اور توڑ پھوڑ کے معاملے پر تھانہ سیکریٹریٹ میں واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس وقت سندھ ہاؤس کے باہر کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں نمائندہ نیوز ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب، بتائیے۔ جی بالکل، یہ وہ سندھ ہاؤس کا گیٹ ہے جہاں پہ آج ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ پی ٹی آئی کے MNA جو تھے وہ اپنے کارکنان کے ہمراہ یہاں پہ پہنچے، اس بیریئر کو کراس کیا اور اس بیریئر کو پار کر کے سامنے جو سندھ ہاؤس کا گیٹ ہے اس پہ چڑھے اور اس گیٹ کو گرایا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو کارکنان تھے وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے منحرف اراکین کے خلاف نعرے بازی کی اور لوٹے انہوں نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے سندھ ہاؤس کے اندر لوٹے پھینکے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اراکین ہیں ان کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ اسلام آباد پولیس پہنچی اور کچھ جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کو ان کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے MNAs تھے وہ بھی رضاکارانہ طور پر پولیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ یہاں سے روانہ ہوئے۔
साबिक सदर आसिफ जरदारी ने सिंध हाउस पर पीटीआई कारकुनों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इमरान खान के पास अगर नंबर्स पूरे होते तो वो पार्लियामेंट लॉजेस और सिंध हाउस पर हमलों के बजाय ऐवान में अपनी ताकत का मुजाहरा करते। इमरान खान ने सिंध हाउस पर नहीं बल्कि वफाक में सिंध की अलामत पर हमला कराकर दरअसल सिंध पर लश्कर कशी की कोशिश की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी सिंध हाउस पर हमले को दहशतगर्दी पर मबनी कार्रवाई करार दे दिया। वफाकी वुज़रा की जानिब से सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत की गई। असद उमर की कारकुनान को फौरी सिंध हाउस से वापस जाने की हिदायत। कहा कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहती, ना होने देगी। मुनहरिफ अरकान को कहीं पनाह लेने की ज़रूरत नहीं। MNAs ने खुद फैसला करना है कि वो किसका साथ दें। दूसरी जानिब फवाद चौधरी बोले सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो अवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। मुनहरिफ MNAs अगर यहीं रहे तो रोजाना ये तमाशा देखेंगे। वज़ीर आज़म ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास कल फिर तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास वज़ीर आज़म की रिहाइश का बनी गाला में होगा। वज़ीर आज़म मुशावरत के बाद अहम फैसला करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताएगा इजलास के हवाले से क्या बातें सामने आई हैं और कौन कौन शामिल होगा। देखें, जिस तरह इस्लामाबाद में मुल्क की सियासी सूरत हाल इवाल्व हो रही है, वज़ीर आज़म रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपनी सियासी कमेटी है उसका इजलास तलब करते हैं और मशावरत करते हैं। तो कल दोबारा अहम इजलास बुलाया गया जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत होगी। मुनर्रिफ अराकीन के हवाले से भी इस इजलास में जो है वो मशावरत होगी। उसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाना है और तहरीक एतमाद को किस तरह से निपटना है, ये तमाम इशूज़ को लेकर वज़ीर आज़म ने कल अपनी सियासी कमेटी और सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल जो है वो इजलास दोबारा कल बनी गाला में। शुक्रिया शाकिर अब्बासी आपका। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा। कहती हैं हुकूमत तो नहीं बचा सकते लेकिन कोई बची खुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ। भाई मरियम नवाज, आप एक मुंतखब हुकूमत तो हो नहीं कि डट जाओ। मरियम नवाज इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है पर भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है, ऐसा कहना था मरियम नवाज का। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ शहरों में बागी खिलाड़ियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए और उनके पोस्टर्स नजर आतिश किए गए। और इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे से खिताब में PTI रहनुमा उमर मुगल ने कहा ज़मीर फरोश इस्तीफा दें और जिस मर्जी पार्टी में जाएं। PTI से मुनहरिफ मजीद अरकान सामने आने लगे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर तलाल गोपांग ने सूरह यासीन पर हलफ उठाकर कहा है कि उन्होंने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से किसी से पैसे नहीं लिए और वोट ज़मीर की आवाज़ पर ही देंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी टीम ने 3.5 साल में कोई काम नहीं किया। आमिर तलाल गोपांग ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बखर से PTI के MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ढांडला का कहना है कि अदम एतमाद के लिए किसी ने पैसों की ऑफर नहीं की। मुस्लिम लीग नून से देरीना ताल्लुकात हैं। अभी तो सिर्फ 12 अरकान शो किए हैं, चाहें तो 2/3 अक्सरियत साबित कर सकते हैं। मुतादिद अरकान के साथ राब्ते में हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का बड़ा दावा, कहते हैं अभी छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, फिल्म चलना बाकी है। फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बड़ा वाजे है, स्पीकर कोई बादशाह नहीं कि जो मर्जी रूलिंग दे। नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। तो अभी एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया है 10 बंदों का। फिल्म तो अभी चली नहीं है। हम 2/3 मेजॉरिटी से अपनी अक्सरियत शो कर सकते हैं, इतनी है। ये 10 लाख की धमकी देते हैं। हम कहते हैं 172 दिखा दो, 10 लाख लाने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ से पीछे। आजकल टीवी और अखबारों में आ रहा है कि नोटों की बोरियां खुल गई हैं। यहाँ तक कि वजीर आजम ने भी सिंध हाउस में नोटों की बोरियां खुलने का जिक्र किया है। लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें ना कोई वोट खरीद रहा है और ना कोई वोट बेच रहा है। ये महज प्रोपेगेंडा है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं हुकूमत तो हमेशा जलसे जुलूस रोकने की कोशिश करती है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही इशू पर जलसा कर रहे हैं। एक बार फिर अपील है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने जलसे जुलूसों का प्रोग्राम मुलतवी कर दें।
हुकूमत अगर अदालत में जाना चाहती है तो शौक से जाए। आइन की किसी शिक के बारे में अदालत अगर कोई तशरीह करती है तो उनका हक है। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये हुकूमत के हरबे हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करती रहेगी। ये सियासी मामला है, इसे सियासी तौर पर ही हल होना चाहिए। मेरे ख्याल में जहाँ तक अदालत में जाने का मसला है, ठीक है, अदालत में जाएं। आइन के किसी भी दफ़े या उसके शक के बारे में कोर्ट अगर कोई तशरीह करती है तो वो भी उनका हक है। मुझे यकीन है कि ये एक वक्ती तौर पर एक हरबा है जो थोड़ा सा हालात में कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान को मुल्की तारीख के सबसे बड़े तिजारती खसारे का सामना है। वजीर खजाना शौकत तरीन के मुताबिक तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर से तजावुज कर चुका है और समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलाती ज़र के बायस खसारे में तेजी से इजाफा हो रहा है। इजाफा नहीं हो रहा है। कराची में तकरीब से खिताब में शौकत तरीन ने कहा मौशी मसाइल थे तभी IMF के पास गए। पाकिस्तान को मुसलसल मौशी नमो की जरूरत है। मुल्की मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा शौकत तरीन महंगाई और तजारती खसारा कम करने के लिए लाए गए थे, आखिर वो नाकाम क्यों साबित हुए? चार्ज लिया था वो अप्रैल 2021 में लिया था और IMF के साथ ये तय था कि जून में रिव्यू करके उनके साथ मामला तय किए जाएंगे। जो प्रोग्राम सस्पेंड था वो कराया जाएगा, लेकिन उन्होंने उसको जानबूझ के पहले अक्टूबर तक रिव्यू कराया और जो काम 2 दिन का था वो कई महीने में किया, तो उसकी वजह से मईशत तबाह बर्बाद हो गई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फिगर्स अगर आप देखें तो जुलाई 21 से फरवरी 2022 तक तिजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा, ये उससे भी ज्यादा था जब 2018 में जब ये कहते थे पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 11.6 अरब डॉलर हो गया। रुपए की कदर में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कमी हुई। दूसरा ये था कि जब आदाद शुमार बता रहे थे कि मईशत खराब हो रही है तो वो कामयाबियों के दावे करते रहे जिसका कोई जवाब नहीं था। हम कह सकते हैं कि उन्होंने मईशत के साथ खिलवाड़ किया, मिनी बजट लेकर आए, फिर ये जो वज़ीर आज़म का पैकेज आया पेट्रोल और बिजली का बगैर स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए, ये इसको आप कह सकते हैं कि अगली हुकूमत हो या ये खुद भी हो, जून में जो बजट आएगा जून 2022 में, उसमें कई 100 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो बेसिकली अमरीकी लॉबी के ये आदमी है और अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें अमलन मामलत की और ताकतवर सबकों को फायदा पहुंचाया, यानी मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया को ठीक है फायदा डॉक्टर पहुंचाने। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया।